مظفر گڑھ دریا چناب میں پانی کی سطح ایک بار پھر بلند ہونے لگی۔ موزہ لال پور اور گردنواہ کے علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ زرعی اراضی پر موجود فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے جانتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ دریائے چناب کے کٹاؤ سے اور سیلابی صورتحال سے مزید علاقے جو متاثر ہو رہے ہیں۔ مظفر گڑھ کی بستی لال پور میں اس وقت موجود ہیں۔ اگر کیمرہ مین آپ کو میرے عقب میں دکھا سکے تو کئی ایکڑ پر مزید فصلیں جو ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں۔ آم کے باغات ہیں یہاں پر بڑے پیمانے پر، اور اس کے علاوہ دیگر بھی باغات ہیں اور سبزیاں بھی اس علاقے میں خاص کر اگائی جاتی ہیں۔ مقامی افراد کا یہ کہنا ہے کہ پانی کی سطح جو ہے وہ روز بروز بلند ہو رہی ہے۔ مقامی افراد ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ کیا کہتے ہیں، یہ کیا صورتحال ہے پانی کی؟ پانی کی صورتحال سر اس طرح ہے کہ دن بدن اس کا فلو بڑھتا چلا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ فصلیں بھی ختم ہو گئی، آم کے باغات تھے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ بس اب کیا کریں آج۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنے گھر ہیں یہاں پہ، کتنی بڑی بستی ہے یہ لال پور؟ کافی ساری بستی ہے، مطلب کافی سارے 1000 سے اوپر ہی گھر ہی ہوں گے تقریباً۔ سارے اٹھ کے وہاں سے روڈ پہ آ گیا ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اچھا اپنی مدد آپ کے تحت آئی ہے یا انتظامیہ نے کوئی مدد کی؟ نہیں، انتظامیہ نے کوئی مدد نہیں کی، بس اپنی مدد آپ کے تحت سارے اٹھ کے اپنا سامان جو کھانے پینے کا اشیاء ہے، مطلب جو بھی ہے وہ لے کے۔ کتنے بڑے پیمانے پر جو یہاں پہ باغات ہیں، اور کون کون سی چیز کے باغات ہیں؟ آم بھی ہیں یہاں پہ، اور فصلیں اناج وغیرہ، یہ وہ سارا کچھ، سبزی، کافی سارے فصلیں ہیں اس میں، وہ ساری تباہ برباد ہو گئی۔ جی بالکل، بستی لال پور کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 1000 کے قریب ہے، اور بڑے پیمانے پر اس علاقے میں آم کے باغات ہیں، اور خاصا جو علاقہ متاثر ہو رہا ہے، اور دریائے چناب کے اس علاقوں میں علاقہ متاثر ہو رہا ہے۔ عامر ڈوگر شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کوٹ چٹا میں موجود سیلابی پانی بن گیا پریشانی۔ سیلابی ریلے گزر گئے مگر آج بھی کئی فٹ سیلابی پانی موجود ہے۔ مکانات اور عمارتیں سیلابی پانی سے متاثر ہونے لگی ہیں۔ رانا محمد سلیم سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جی بتائیے، سیلاب کے بعد کیا صورتحال ہے؟ تحصیل کوٹ چٹا کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر وڈور رود کوہی کے پانی نے جو ہے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ یہاں پر تحصیل کوٹ چٹا کے جو مختلف علاقے ہیں، جن میں بستی کمبھار والا، بستی کھوسا، بستی لشاری، جبکہ درخواست جمال خان میں جو ہے ٹرک ٹالپور، اور اسی طرح چوٹی زری میں حسن آباد کالونی، خاص قبرستان تھا، وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اس وقت میں جو ہے چاک کمبھار والا میں موجود ہوں، جہاں پر جو ہے سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے یہاں پر پانی نے۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ یہاں پر اس وقت جہاں پر آپ پانی دیکھ رہے ہیں، یہ پوری یہاں پر بستی جو ہے کمبھار والا آباد تھی۔ یہاں پر جو ہے سینکڑوں گھر جو ہے وہ آباد تھے۔ یہاں پر جو ہے لوگ شدید متاثر ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے۔ اس وقت بھی یہاں پر جو ہے کئی فٹ جو ہے پانی کھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی بچی کچی جو املاک ہیں وہ بھی شدید متاثر ہو رہی ہیں، اور یہاں پر امدادی کارروائی میں بھی انہیں جو ہے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر میں بتاؤں تو آپ کو جو ہے وڈور رود کوئی میں اس وقت جو ہے پانی رک چکا ہے، جس کی وجہ سے یہاں مانکا کینال میں جو ہے پانی کی مقدار بہت کم ہے، لیکن یہاں پر اخراج نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے آج بھی پانی موجود ہے۔ آج بھی پانی موجود ہے۔ رانا محمد سلیم شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ دریائے چناب ہیڈ پنجنت پر 1,21,000 کیوسک کا سیلابی ریلا۔ علی پور انتظامیہ کے سیلاب سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ رانا عمران سعیدی سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، جو اس وقت ہیڈ پنجنت دریائے چناب کے مقام پر موجود ہیں۔ جی عمران بتائیے، کیا صورتحال ہے تازہ ترین؟ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ہیڈ پنجنت دریائے چناب کے مقام پر۔ اس وقت جو ہے 1,21,000 کیوسک کا جو ریلا ہے وہ ہیڈ پنجنت کے مقام دریائے چناب سے گزر رہا ہے۔ سیلاب کی متوقع صورتحال سے اگر بات کی جائے تو ضلع انتظامیہ نے سیلاب سے نپٹنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ فلڈ ریلیف کیمپ جو ہیں وہ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ 4 مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، جن میں جو ہے مڈ والا ہے، ہیڈ پنجنت ہے، بیت بوڑھا ہے، اس کے علاوہ سیت پور ہے۔ ریسکیو کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ افراد کو جو ہے وہاں سے ریسکیو کرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ 285 جو افراد ہیں اس وقت تک جو ہے وہ ریسکیو کر لیے گئے ہیں۔ ہیڈ تریمو پر پانی کی جو سطح ہے وہ کم ہونا شروع ہو چکی ہے۔ محکمہ ایریگیشن کے مطابق متوقع جو سیلاب کا بڑا خطرہ تھا وہ اس وقت جو ہے ٹل چکا ہے، کیونکہ بھارت سے چھوڑا جانے والا جو پانی ہے ساتھ موجود تھے۔
दरियाए सिंध में लिया के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब बरकरार। सैलाब की वजह से फसलों और मकानात को शदीद नुकसान। बकरी अहमद खान में मुतादिद मकामात और कीमती ज़रई अराजी भी तबाह हो गई है, जबकि पानी की सतह बुलंद होने से मुकीनों की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। दरियाए सिंध में लिया के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब बरकरार। इस हवाले से जाहिद सरफराज से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी जाहिद। सिंध में लिया के मकाम पर इस वक्त जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद है। पानी की सतह के अंदर मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। इस वक्त 3,90,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो यहाँ से गुजर है, जिसकी वजह से दरमियाने दर्जे का सैलाब है। और दरमियाने दर्जे के सैलाब की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। मैं से मौजूद हूँ बकरी अहमद खान के नशेबी इलाके के अंदर, जहाँ पर अगर बात करें तो पानी की सतह में मुसलसल इजाफे की वजह से जो यहाँ पर घर हैं, जो फसलात हैं, जिनमें तिल की फसल है, दीगर जो कीमती फसलात हैं, वो इस सैलाब की नज़र हो रही हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पर मकीन है उनको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लाखों रुपए के नुकसानात के बावजूद अगर बात करें तो यहाँ पर इंतजामिया की जानब से ताहाल जो रिलीफ के इकदाम हैं वो यहाँ पर इंतहाई कम नजर आते हैं, जिसकी वजह से जो मकीन है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ यहाँ पर कैंप तो कैंप किए गए हैं, लेकिन इंतजामिया की जानब से ताहाल जो रिलीफ के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर खाने पीने के इंतजाम हैं, जो जानवरों के चारा और दीगर जो इकदाम है वो यहाँ पर नजर नहीं आते, जिसकी वजह से जो मकीन है वो परेशान है। मुतालबा करें कि वज़ीर पंजाब जो है वो लिया का दौरा भी करें और लिया के दौरे के दौरान सैलाबी इलाका जो है उसको आफत करार देने के साथ साथ यहाँ पर जो है उनके रिलीफ के इकदाम के लिए उनकी इमदाद का ऐलान भी किया जाए। यहाँ पर जो लोग हैं उनके इस दरिया के उनके जो घर हैं उनके घरों के चारों तरफ पानी मौजूद है, जिस वजह से चारों तरफ पानी मौजूद है। जाहिद सरफराज शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको बताएं दरियाओं में पानी के बहाव की सूरत हाल मामूल पर आने लगी है। अरसा के मुताबिक दरियाओं में पानी का मजमूई बहाव 4,03,000 क्यूसिक है। डैमों में पानी का जखीरा 70 लाख एकड़ फुट हो गया है, जबकि चश्मा के मुकाम पर दरिया सिंध में पानी का बहाव 3,65,000 क्यूसिक है। तौनसा बैराज पर पानी का बहाव 3,81,000 क्यूसिक है। 1 अप्रैल से अब तक 28 लाख एकड़ फुट पानी समुंदर बुर्द हो चुका है। दरियाओं में पानी के बहाव की सूरत हाल मामूल पर आने लगी है। अरसा के मुताबिक दरियाओं में पानी का मजमूई बहाव 4,03,000 क्यूसिक है। डैमों में पानी का जखीरा 70 लाख एकड़ फुट हो गया है, जबकि चश्मा के मकाम पर दरिया सिंध में पानी का बहाव 3,65,000 क्यूसिक है। दरिया चनाब में पानी के बहाव के एदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। हेड मराला पर 53,374 क्यूसिक आमद, जबकि 32,924 क्यूसिक अखराज है। हेडहांकी पर 58,751 यूसिक आमद, जबकि 52,855 क्यूसिक अखराज है। इस हवाले से यासिर मजीद अपडेट कर रहे हैं। जी, दरिया चनाब में दूसरा बड़ा सैलाबी रेला जो कि भारत की जानिब से छोड़ा गया था, वो पानी इस वक्त मुल्तान की हदूद से गुजर चुका है। गुज़िश्ता रोज़ ये पानी मुल्तान की हदूद में मौजूद था और पानी का ये सैलाबी रेला गुजरने के बावजूद ताहाल दरिया चनाब के नशेबी इलाके जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। और PDMA की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पानी की सतह में कमी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। इस वक्त हेड पंजनत पर ये सैलाबी रेला पहुंच चुका है। तकरीबन 1,21,000 क्यूसेक हेड पंजनत तक पानी की सतह जो है वो पहुंच गई है। मेरा कैमरामैन पीछे आपको दिखाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फसलें और बागात इस वक्त भी सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं और ये तवक्को जाहिर की जा रही है अगले 2 से 3 रोज़ तक पानी की सतह में मज़ीद कमी होगी। इस वक्त हेड मराला पर 53,374 क्यूसेक पानी की आमद है और यहाँ से 32,974 क्यूसेक पानी का इखराज हो रहा है। हेड खानकी पर 58,751 क्यूसेक पानी की आमद और 52,855 क्यूसेक इखराज हो रहा है। हेड कादराबाद पर 68,828 क्यूसेक पानी की आमद और 49,828 क्यूसेक इखराज है। हेड त्रिमू पर 86,087 क्यूसेक पानी की आमद और यहाँ से इखराज हो रहा है 82,787 क्यूसेक, जबकि हेड पंजनत पर इस वक्त 1,21,764 क्यूसेक पानी की आमद है और 1,12,564 क्यूसेक यहाँ से इखराज हो रहा है। ये ताज़ा तरीन गेज रिपोर्ट है जो PDMA की जानिब से जारी की गई है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अगले 2 से 3 रोज़ तक दरिया चनाब में पानी की सतह मज़ीद कम होकर नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी। सतह मज़ीद कम होगी। यासिर मजीद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मियांवाली चश्मा और जिनाब एराज के मकाम पर पानी की आमद में कमी हुई है। जिनाब एराज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी सूरत हाल के बायस कच्चे की आबादियों को वार्निंग भी जारी कर दी गई है। चश्मा में पानी की आमद 2,97,854 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि जिनाब एराज में पानी की आमद 1,87,000
57 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। कच्चे और दरिया के किनारे मौजूद आबादियों की नकल मकानी जारी है। मियांवाली, चश्मा और जनाब राज के मकाम पर पानी की आमद में कमी हुई है। जनाब राज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी सूरत हाल के बायस कच्चे की आबादियों को वार्निंग जारी की गई है। चश्मा में पानी की आमद 2,97,854 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि जनाब राज में पानी की आमद 1,87,057 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। कोहे सुलेमान में बारिशों का सिलसिला बिलाखिर रुक गया। बरसाती रेलों, नदी नालों और रोद कोहियों में तोगयानी खत्म हो गई है। कोहे सुलेमान के इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान ताहाल बरकरार है। इस हवाले से अली मूसा रजा से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों कोहे सुलेमान में बारिशों की बात की जाए तो मुसलसल होने वाली बारिशों का जो सिलसिला है अब वो थम गया है, मगर सूरत ये है कि अभी भी कोहे सुलेमान पर जो है गहरे सुरमाई बादलों ने उनको घेरा हुआ है। मूसलाधार तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है, तो नदी नाले जो हैं वो इससे दोबारा जो है वो आ सकते हैं। मगर ताज़ा तरीन सूरत हाल ये कि बारिशों में जो है एक दिन का वक्फा है, जिसके बाद ये नदी नालों में तुग़यानी और पानी की जो मिकदार बढ़ रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो मैं इस वक्त सखी सरवर बरसाती रेले के रूट पर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर जो मुसलसल बरसाती नदी नाले जो थे वो आ रहे थे, अब वो ख़त्म हो गए हैं। पानी की मिकदार बिल्कुल पीछे रुक गई है और ये जो कबायली इलाकों के रास्ते मनक़ता थे, मगर वहाँ पर पानी तो अब नहीं बह रहा, मगर रोड्स वहाँ पर बह जाने की वजह से अभी भी लोगों को वहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड्स को बहाल नहीं किया जा सके, मगर बारिशों का फिर से कवी इम्कान है कि फिर से कोहे सुलेमान पर जो मूसलाधार बारिशों का इम्कान है, फिर से वही सैलाबी रेले, नदी नाले जो हैं वो आ सकते हैं। तो सखी सरवर में जो है बरसाती नाला ख़त्म हो गया, इसी तरह बाकी इलाकों में जो है। अली मूसा रजा, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अफवाज पाकिस्तान का सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सैलाब मुतासरीन में हजारों की तादाद में राशन बैग्स और तिबी इमदाद के लिए अद्वियात और इलाज व मुआलजात जारी है। राना बिलाल इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में सैलाब की सूरत हाल है। इस सैलाब से निमटने के लिए पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगा दिया गया है। इसके साथ साथ जो मुतासरीन सैलाब से हैं उनको फ्री राशन बैग्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तोनसा के इलाका बिदरान शर्की में। यहाँ पर जो है लोगों को राशन भी तकसीम किया जा रहा है, फ्री कैंप में दवाइयाँ भी दी गई हैं और इलाज मुआवजा भी किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, आपको राशन दिया गया है फौज की जानिब से, किस हवाले से? साकुलाला फौज, पाक फौज ने राशन दीते, अद्वियात दवाइयाँ भी दीते हैं। इन्हें साल नाल बहुत बड़ा तामन कीते, मालक इन्हें जिंदगी करे, इन्हें बहुत बड़ा साल नाल वो कीते। पाक फौज की जाने से तावन किया जा रहा है, राशन भी दिया जा रहा है, अद्वियात भी दी जा रही है। इस हवाले से हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे? जी पाक फौज की तरफ से हमारा बहुत ज़्यादा तावन किया जा रहा है। हमें इन लोगों ने पानी से निकाला, हमें राशन दिया, हमें फ्री मेडिकल दिया, फ्री दवाइयाँ दी, अपने बच्चों के लिए भी, घर वालों के लिए दी, जो बीमार थे, जो यहाँ नहीं आ सकते थे उनके लिए भी पाक फौज ने हमें दवाइयाँ दी, राशन दिया, पानी से भी निकाला। हम पाक फौज का शुक्रिया अदा करते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, सैलाब से मुतासरीन का यही कहना है कि पाक फौज की जानिब से हमारे साथ मुकम्मल तौर पर ताउन किया जा रहा है। हमें अद्वियात भी फ्राहम की जा रही है, इसके साथ साथ राशन बैग्स भी दिए जा रहे हैं। हमें पानी से पाक फौज की जानिब से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। राना बिलाल, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियांवाली कच्चा पिपला गरबी में दरिया का खतरनाक कटाव जारी है। फसलें दरियाबुर्द हो गई हैं। कटाव के बाद सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द हो गई हैं। मुतादिद डेराजात और मकानात भी दरिया की नजर हो गए हैं। दर्जनों ट्यूबवेल्स दरियाबुर्द हो गए हैं। किसानों को लाखों रुपए के नुकसान। दरियाई कटाव से दाल, मूंगी और कपास की फसलें तबाह हो गई हैं। मुसलसल कटाव के बाद किसान कच्ची फसलें काटने पर मजबूर हो गए हैं। मियांवाली कच्चा पिपला गरबी में दरिया का खतरनाक कटाव, फसलें दरियाबुर्द हो गई हैं। कटाव के बाद सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द हो गई हैं। इस हवाले से अख्तर मजाज से जानते हैं। जी अख्तर, बताइए क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, ये तहसील पिपला का इलाका है जिसे बखड़ा भी कहा जाता है और दरिया की गरबी साइड पे ये जो दरिया ने कटाव शुरू किया हुआ है और यहाँ पे फसलें जो हैं सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी हुई फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं और उसके अलावा
कटाव में जब वसअत आई है तो लोग जो है अपनी कच्ची फसलें जो है काटने पर मजबूर हो गए हैं, वहाँ के लोग नकल मकानी कर रहे हैं। मैं इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उसके हवाले से फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई थी कि वहाँ पे जो है स्पर बांध बांधा जाएगा या दीगर पत्थर डाले जाएंगे, लेकिन वो जो है प्रोसेस ही रहा, अमल तक ना पहुंचा और ये कटाव जो है तकरीबन पिछले 2 साल से जारी है। बिल्कुल कभी हल्के दर्जे का कटाव शुरू हो जाता है तो जैसे ही दरियाओं में पानी में इजाफा होता है तो कटाव में भी इजाफा हो जाता है। इस वक्त तक उस कच्चा के इलाके के जो लोग हैं बिल्कुल बेहारो मददगार हैं। इस वक्त तक इंतजामिया की जानिब से भी वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा, लोग मजबूर हैं और नकल मकानी कर लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान हो चुके हैं। जी, लाखों के नुकसान हो चुके हैं। अख्तर मजाज, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, दरिया चनाब और सिंध में तोगयानी के बायस पानी दरिया से उलटने लगा। बेट के इलाके दरियाई पानी की जद में आ गए हैं, जबकि बस्ती माछी, अंदरा और दीगर बस्तियां सैलाब से मुतासिर हो गई हैं। सरकारी स्कूल खानपुर नड़का दरियाई पानी ने घेर लिया है। बड़े पैमाने पर ज़रई अराजी भी ज़ेर आब आ गई है। मुतासरीन बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजिर हैं। खाने को कुछ है ना जानवर और हम भूखे हैं, मकीनों का ऐसा कहना है। दरिया चनाब और सिंध में तोगयानी के बायस पानी दरिया से उलटने लगा, जबकि बेट के इलाके दरियाई पानी की जद में आ गए हैं। बस्ती माछी, अंदरा और दीगर बस्तियां सैलाब से मुतासिर हो गई हैं। बड़े पैमाने पर ज़रई अराजी भी ज़ेर आब आ गई है। मुतासरीन बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजिर हैं। अवाली जिला भर में बिजली टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स में एहतजाज जारी है। ताजरों के हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ज़िलाई सदर अताउल्लाह खान शहबाज खेल का कहना है कि जालिमाना टैक्सेस को मुस्तरद करते हैं। उनका मजीद क्या कहना है, अख्तर मजाज से जानते हैं। बिजली के बिलों पर हुकूमत की जानिब से लगाए गए टैक्सेस के खिलाफ अंजुमन ताजरान जिला मियां वाली के तमाम ताजर, तमाम बाजारों के सदूर जो हैं इस वक्त सरापा एहतजाज है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान पाकिस्तान व ज़िलाई सदर अताउल्लाह खान शहबाज खैल साहब, आपसे इस वक्त बात करते हैं। सर बताइएगा क्या तरीकाकार रहेगा इस एहतजाज का? सर अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिपला से लेकर ईसा खैल तक तमाम बाजारों के अंदर ये जालमाना जो टैक्स बिलों में लगा है उसके खिलाफ पूरे ज़िले के अंदर एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज उस वक्त तक इंशाल्लाह जारी रहेगा जब तक ये जालमाना टैक्स वापस नहीं लिया गया, उस तक ये जालमाना टैक्स के खिलाफ एहतजाज भी जारी रहेगा। और इसके बाद इंशाल्लाह जब ये अगर इन्होंने वापस ना लिया तो इंशाल्लाह पूरे मुल्क में शटल डाउन हड़ताल का इंशाल्लाह ऐलान करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शटल डाउन भी होगी। हबीबर रहमान साहब, आप ताजर रहनुमा हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जी हुकूमत ने कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया, ये तो हमारे ताजरों का मुआशी कत्ल किया है। फाइलर के लिए 3,000 से स्टार्ट होगा और 30,000 रुपये तक जाएगा और नॉन फाइलर के लिए ये टैक्स 6,000 से शुरू होगा। ये ताजरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। आज से हमारा ज़िला मियांवाली में एहतजाज शुरू हो गया है। हम इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे, आगे रोड भी ब्लॉक करेंगे, पूरा ज़िला की शटर डाउन हड़ताल भी करेंगे और मरकज़ी अंजुमन ताजरान के साथ पूरे मुल्कगीर हड़ताल में भी हम उनका हिस्सा बनेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि अख्तर मजाज, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत के जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ ओल्ड आवास में भी ट्रांसपोर्टर्स की दूसरे रोज भी हड़ताल जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। नुमान सईद मजीद अपडेट करेंगे। टैक्सेस के खिलाफ जो है मुल्क भर की तरह जो है फोर्ट अब्बास में भी ट्रांसपोर्टर्स की जो है वो हड़ताल जारी है। इस वक्त जो है मैं जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल जो है आज दूसरे रोज भी जारी है। इस वक्त मेरे साथ जो है मालकान भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा कि कितना टैक्सेस में इजाफा हुआ है, आज दूसरे रोज भी हड़ताल जारी है और ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये हड़ताल जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे ये हड़ताल जारी रहेगी। हमारा मुतालबा ये है कि टैक्स पहले 3 मंथ का था 7500 रुपये, तो अब उन्होंने 52,000 कर दिया है, तो लिहाजा ये साल का 2 लाख रुपया जो इनकम टैक्स लगा है, तो जब तक ये टैक्स ख़त्म नहीं होगा हमारे मुतालबात नहीं पूरे होंगे। हमारे इसके अलावा और भी मुतालबात है, डीज़ल कम किया जाए और टूल टैक्स कम किया जाए, अड्डा पर्ची कम की जाए,
तो लिहाजा जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे किए जाते तो ये हड़ताल जारी रहेगी। हाँ जी बिल्कुल, ये हड़ताल जारी रहेगी। ड्राइवर मौजूद है। जी भाई बताइएगा, हड़ताल दूसरे रोज में दाखिल हो चुके हैं, आपके घरों के चूल्हे भी जो है वो ठंडे हो चुके हैं, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? ये मुतालबा हमारा टैक्स का ही है, ठीक है ना। ये टैक्स उन्होंने ज़्यादा किया है तो इसकी वजह से मालिकों ने जो हड़ताल की है, तो हड़ताल की वजह से हमारे जो चूल्हे जो वो ठंडे पड़े हैं, वो नहीं जल रहे हैं। हमारे निक्के निक्के बच्चे हैं और हम ड्राइवर हैं, हमारे साथ कनेक्टर भी हैं, क्लीनर भी हैं, 3 आदमी हैं जो चलते हैं गाड़ी पे। तीनों के घर जो हैं वो दरम भरम हो चुके हैं रोज़ी की वजह से। जब हड़ताल रहेगी तो साफ सारे गाड़ी बंद रहेगी, गाड़ी बंद रहेंगी तो हम भी घर रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जो है हड़ताल के बाद जो इनके घरों के चूल्हे जो है वो ठंडे। नुमान से शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। लिया म्यूनिसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी, स्कूलों के बाहर बारिश का पानी जमा हो गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बैट अंगड़ा के बाहर बारिश का पानी जमा है। स्कूल आने वाली तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्कूल के बाहर पानी जमा है, इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं करती, तालिबात का ऐसा कहना है। लिया म्यूनिसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी, स्कूल के बाहर बारिश का पानी जमा है। रंगपुर के कदीमी नूरी कब्रिस्तान में हालिया बारिशों के बायस कई फुट पानी जमा हो गया है। मुतादिद कब्रें मुनहदिम हो गई हैं। राना परवेज अख्तर मजीद बता रहे हैं के कदीमी नूरी कब्रिस्तान में जहां सूरत हाल यह है कि हालिया बारिशों के बायस कब्रिस्तान में कई फुट पानी जमा हो चुका है और मुतअद्दिद कब्रें जो हैं वो भी मुनद्दम हो चुकी हैं। तो शहरी जो है वो अपने प्यारे की कब्रों पर फातिहा खाने के लिए आते हैं, तो इन्हें यहाँ पर जो है खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि बारिशों के बायस जो है वो कब्रें भी मुनद्दम हो चुकी हैं, पानी भी यहाँ पर खड़ा हुआ, क्या क्या परेशानी, क्या कहेंगे? जी, ये जो अब हालिया बारिशें आई हैं इसकी वजह से देख लें हमारे कब्रिस्तान में 2-2 फुट तकरीबन पानी खड़ा हो गया है और कई कब्रें जो है वो तकरीबन मुनहदम हो गई हैं। और इसके अलावा ये जो सेवरेज वाला डिस्पोजल है ये भी कब्रिस्तान के साथ बनाया है और इसका अभी तक जो आप ये निकास का निज़ाम है वो ठीक नहीं है। वो सारा पानी भी इधर कब्रिस्तान की तरफ ही आ रहा है तकरीबन। और जो हम ये पहले भी कई दफ़ा मुतालबा कर चुके हैं 4 दीवारी का, 4 दीवारी पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से 4 दीवारी पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मैं आपको मुल्तान ने मुल्तानियों को किया परेशान, गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों और ताजिरों को करने लगी हलकान। कारोबारी अफराद को भी शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने बिला जवाज लोड शेडिंग को जुल्म करार दे दिया। शहरियों का गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। वेफको मुल्तान ने मुल्तानियों को किया परेशान, गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों और ताजिरों को करने लगी हलकान। कारोबारी अफराद को भी शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने बिला जवाज लोड शेडिंग को जुल्म करार दे दिया। भावलनगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के नए चिल्ड्रन वार्ड की तज़ीन और आइस का काम मुकम्मल हो गया है। इस हवाले से कासिम अली शेख हम मजीद अपडेट करेंगे। किसी तफरीह गाह में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावलनगर के जो चिल्ड्रन वार्ड में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन अगर आप दिखा सके तो ये इंतहाई खूबसूरत जो है वो चिल्ड्रन वार्ड है और डॉक्टर्स और यहाँ के जो अमले ने इंतहाई जो है खूबसूरती से जो है इसको सजाया है। इंतहाई खूबसूरत फूल लगाए गए हैं, बच्चों के लिए जो है वो झूलों का भी इंतजाम किया है। तो बिल्कुल इस तरह महसूस नहीं होता कि ये कोई डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावनगर का चिल्ड्रन वार्ड है या तफरीह गाह। तो यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। आप बताइएगा जी यहाँ आकर कैसा लग रहा है, कि कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है जी, बहुत अच्छा। इससे इधर नमाज पढ़ने के भी था है, बच्चों की खेलने के भी था है और स्टाफ का भी अच्छा इखलाक है। डॉक्टर इकबाल साहब का भी बहुत अच्छा इखलाक है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे घर बैठे। किसी और अस्पताल में भी ऐसा माहौल देखा है कभी? मैं तो सर इधर ही आया हूँ, बहुत अच्छा है। और साडा मकामी मिंचनाबाद वाला भी तकरीबन ठीक है, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। इधर साढ़े मिंचनाबाद ये सहूलत नहीं है, बच्चों की नर्सरी नहीं है, उधर बच्चों का डॉक्टर अभी आया, उधर ये सहूलत नहीं है जो बावलनगर में है। बावलनगर के डॉक्टर का भी अच्छा इखलाक है, इकबाल भट्टू साहब का, और इधर सहूलत बहुत है, नमाज पढ़ने की भी इधर है, वजू करने की भी है, बच्चों की सहूलत बहुत है। कासिम अली से शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको बताएं, 22 कंपनियों में कीमतें बढ़ाने की मैराथन रेस जारी है। सुजुकी 22 की कीमतों में 10 से 16,000 का इजाफा हो गया है। सुजुकी GD 110 सीसी 10,000 बढ़कर 2,29,000 की हो गई है। सुजुकी GS 12,000 बढ़कर 2,51,000 रुपए की हो गई है, जबकि सुजुकी GS 150
SE 15,000 इजाफे से 2,71,000 की हो गई है। सुजुकी GR 16,000 बढ़कर 3,65,000 रुपए की हो गई है। 22 कंपनियों में कीमतें बढ़ाने की मैराथन रेस जारी है। सुजुकी 22 की कीमतों में 10 से 16,000 का इजाफा हो गया है। सुजुकी GD 110 सीसी 10,000 बढ़कर 2,29,000 की हो गई है। मुल्तान NA 157 के ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इलेक्शन के लिए ठनने का खदशा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से अली मूसा गिलानी बतौर उम्मीदवार फाइनल हैं, जबकि लीगी रहनुमा अब्दुल गफार डोगर मैदान में उतर आए हैं, जबकि उन्होंने अली मूसा गिलानी की हिमायत न करने का फैसला किया है। इस हवाले से जुनेद अनवर से मजीद बात करेंगे। जी जुनेद, काफी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। जी बिल्कुल, मुल्तान के हल्का NA 157 में इस वक्त जो है वो दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है, जहां पर गिलानी खानदान और शाह महमूद खान जो फैमिली है वो आपस में टकराने के लिए तैयार है। वहीं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अब्दुल गफार डोगर जो है उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया हुआ है। अब्दुल गफार डोगर का कहना है कि वो किसी भी सूरत में हल्का खाली नहीं छोड़ेंगे। दो बड़े सियासी खानदानों के दरमियान इस अब्दुल गफार डोगर भी मौजूद है। अब्दुल गफार डोगर की गुज़िश्ता रोज जो है वो हमजा शहबाज से लाहौर के अंदर मुलाकात हुई। मुलाकात के अंदर लीगी रहनुमा राना इकबाल सिराज और चौधरी अब्दुल वहीद अराई भी मौजूद थे। अब्दुल गफार डोगर ने हमजा शहबाज से कहा कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, चाहे उन्हें आज़ाद हैसियत में इलेक्शन क्यों ना लड़ना पड़ा। उन्होंने बताया कि जनरल इलेक्शन में उन्होंने एक अच्छे वोट हासिल किए थे, 60,000 से ज़्यादा वोट लिए थे, तो वो ये ज़िमनी इलेक्शन हर सूरत लड़ेंगे। जिस पर हमजा शहबाज का उनसे कहना था कि उन्होंने उनका मौक़िफ़ सुन लिया है और वो पार्टी मुशावरत के बाद 2 से 3 रोज़ में अपने फैसले से उन्हें आगाह कर लेंगे। साथ साथ हमजा शहबाज का ये भी कहना था अब्दुल गफार डोगर को कि वो पार्टी के फैसले को तस्लीम करें, ये उनके लिए बेहतर होगा। दूसरी जानिब इस वक्त अब्दुल गफार डोगर जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। आज उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात है और पार्टी टिकट का मुतालबा वो शहबाज शरीफ से भी करेंगे। इस मुस्लिम लीग नून की जो मकामी लीडरशिप है वो अब्दुल गफार डोगर के इस फैसले को किस नज़र से देखती है कि अब्दुल गफार डोगर आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। इस वक्त लीगी रहनुमा उस्मान खान बाबर हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, क्या देखते हैं कि अब्दुल गफार डोगर ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, से इस्लामाबाद में मौजूद है, जबकि PDM के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी है। जी बिल्कुल जुनेद भाई, हम इस ख्वाहिश का इज़हार करेंगे कि गफार डोगर साहब को हमारी पार्टी टिकट दे, और क्योंकि वो जैसा कि आपने पहले कहा कि उन्होंने 60,000 से ज़्यादा वोट लिए और वो हमारे हलके की एक फेवरेट वर्कर हैं, फेवरेट पर्सनैलिटी हैं, तो बाकी भारत जैसे कि पार्टी का फैसला है उस पर तो हम उनका जो हुक्म होगा उस पर हम तामील करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमारी पार्टी से दरख्वास्त है कि मलिक अब्दुल गफार डोगर को ही टिकट दी जाए, क्योंकि वो इस हलके की एक नाम भी हैं और एक्टिव भी हैं और लोगों से उनका बड़ा प्यार मोहब्बत और बहुत ज़्यादा उनका सारा उनका वो भी है। लेकिन जो पार्टी का फैसला होगा वो हम बिल्कुल, जो लीगी क़यादत है उसकी ख्वाहिश है कि अब्दुल गफार डोगर को जो है वो टिकट दिया जाए, मगर साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो पार्टी फैसला करेगी उसके ऊपर। जुनेद अनवर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। रुपए की कदर को डॉलर का बड़ा धोबी पटका। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 38 पैसे सस्ता हो गया। एक ही दिन में डॉलर 238 रुपए से गिरकर 231 रुपए पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ था। इस हवाले से अशरफ खान मजीद अपडेट करेंगे। जी देखा जाए इंटरबैंक मार्केट में जो रुपए की कदर में नुमाया बेहतरी हुई है। डॉलर एक ही दिन में 7 रुपए 38 पैसे गिर गया। देखा जाए जो मुसलसल जो है जो प्रेशर था उसमें कमी हुई है। डॉलर जो है 238 रुपए 38 पैसे से देखा जाए जो गिर कर जो 231 रुपए पर इस वक्त इंटरबैंक में ट्रेड कर रहा है। और माशी माहिरीन का कहना है दूसरा रोज जो माशी अहम अदद शुमार आए जिसमें तजारती खसारे में नुमाया कमी हुई है 47% की, उसका भी इम्पैक्ट है। साथ ही पाकिस्तान की दरामदाद में भी नुमाया कमी हुई है जो कि 4 अरब 80 करोड़ डॉलर तक महदूद रहा है, जो कि पहले 6 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। ये वो कंसर्न है जिससे जो है डॉलर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अब डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई है। ऐसा लग रहा है कि डॉलर मजीद जो है कमजोर हो सकता है। डॉलर मजीद कमजोर हो सकता है। अशरफ खान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।